السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا پارٹ۔ ہم نے آپ کو بات کی ہے 1831 تک کہ 1831 میں سید صاحب نے جو پنجاب کے علاقے میں اپنا مرکز بنایا تھا اور بالا کوٹ میں سید صاحب سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی شہادت کے بعد اب کیا بنا، تو ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کو 1831 سے لے کر 1857 تک ہم بات کریں۔ آپ کو یہ پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ پورے ہندوستان میں یہ سب سے پہلا مرکز تھا مجاہدین کا، جہاں پہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انگریزوں سے مقابلے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ سید صاحب کا انتقال ہو گیا اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جو دنیا سے چلے گئے، تو ایسا نہیں ہوا کہ مجاہدین جو ہے انہوں نے ایک دم سرنڈر ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنی پلاننگ چینج کی کہ اب ہمارے پاس تعداد بھی کم ہے، لہذا اب ہم جو ہے نا گوریلا وار کریں گے۔ گوریلا وار کو سمجھتے ہیں کہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ اپنے اڈوں کو چھپے ہوئے رکھتے ہیں اور جب کبھی ان کو موقع لگتا ہے دشمن پر تو اچانک وار کرتے ہیں اور وار کرنے کے بعد پھر وہ اپنے چھپے ہوئے ٹھکانے پر واپس ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کی پوری کارروائی دیکھیں گے، جب وہ حملہ کرتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کارروائی 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہے۔ یہ بہت ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں نے پلاننگ کیا کہ آستھانہ جو مرکز تھا، جو جگہ تھی، اسی کو انہوں نے، وہاں یہ پہاڑی علاقہ تھا، لہذا انہوں نے گوریلا وار کی پلاننگ کی۔ اب اس کے بعد مولانا نصیر الدین صاحب جو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں اور رفیع الدین صاحب کے نواسے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ ارادہ کیا کہ جا کر کے آستھانہ میں، جہاں پہ اب اس وقت قیادت کی سخت ضرورت ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں جا کر کے قیادت کو پھر سے سنبھالیں گے اور مجاہدین کو منظم کریں گے انگریزوں کے خلاف۔ تو 35-31 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے 35 میں پلاننگ بنائی کہ وہاں مجھے جانا چاہیے۔ سارا جو معاشی معاملہ تھا، یعنی پیسے کا معاملہ اور لوگوں کی جو سپلائی تھی، وہ دلی سے ہو رہی تھی اور کچھ چنئی سے ہو رہی تھی اور کچھ حیدرآباد سے ہو رہی تھی اور کچھ بمبئی سے ہو رہی تھی۔ یہ جو 2 بھائی کا کل میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، ولایت علی اور عنایت علی، مولانا ولایت علی اور عنایت علی، یہ دونوں بہت ہی زبردست قسم کے عالم تھے اور انہوں نے 2 بڑے بڑے مرکز سنبھال رکھے تھے، وہاں سے جو ہے لوگوں کو ترغیب دلانا اور جہاد کے لیے بھیجنا اور پیسے کی بھی فراہمی ادھر جو ہے دلی سے ہو رہی تھی اور ادھر ان مراکز سے ہوتی رہی۔ تو جب مولانا نصیر الدین صاحب راستے سے نکلے تو ان کو راستے میں بھی رکاوٹ ہوتی رہی، لہذا تبلیغ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، کسی طرح کے 1840 میں یہ پہنچے، کیا کہتے ہیں، آستھانہ، یعنی جو پنجاب کا علاقہ تھا جہاں پہ مرکز تھا۔ اتفاق سے اللہ کا کچھ کرنا کہ ان کی جو ہے وہ یہ پہنچنے کے کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد مولانا عنایت علی کو جو معلوم ہوا تو یہ لوگ رسد پہنچا رہے تھے، مالی بھی اور مجاہدین کی بھی، افراد کی بھی۔ تو مولانا عنایت علی اور ولایت علی نے بالا کوٹ کی سنبھال، بالا کوٹ میں جو معاملہ تھا اس کی جو ہے وہ کمان سنبھالی۔ تو وہ پھر یہاں سے انہوں نے ہجرت کیا، جو دلی سے اور بمبئی اور حیدرآباد کو مرکز بنائے ہوئے تھے۔ مرکز تو نہیں تھا لیکن یہ اس علاقے میں رہتے تھے کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ٹھیک ٹھاک تھی اور پیسے لوگوں کے پاس تھے، زیادہ یہاں کے لوگ مدد کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پہ دوسرا پھر زبردست ٹکر ہوا جو گلاب سنگھ سے ٹکر ہوا۔ یہ گلاب سنگھ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سکھ تھے اور انہوں نے انگریزوں سے ساٹھ گانٹھ کر لی تھی۔ تو انگریز کرتے یہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن ہندوستان میں ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے، ورنہ ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے لیکن ہمارے معاملے میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ہم دلی پہ جو جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں اس پہ کسی قسم کی رکاوٹ اطراف کے صوبوں سے نہیں ہونی چاہیے۔
तो गुलाब सिंह ने जो है वो अंग्रेजों के साथ पैक्ट कर लिया। तो मौलाना को जाना है दिल्ली। ये पूरे मरकज का असल जो है वो कहाँ है कि ये लाहौर और पेशावर होते हुए, अमृतसर होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो ये दूसरी रुकावट आई गुलाब सिंह की। बहरहाल यहाँ पे जो है जबरदस्त किस्म की जो है वो लड़ाई हुई, और यहाँ पर भी वही गेम खेला गया जो सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ खेला गया। वो गेम क्या था कि ये लोग वहाबी हैं, और सेम वही सूरत हाल पेश आ गई जो सैयद अहमद की पेश आई थी। लिहाजा ये जंग भी जो है ना वो कामयाब नहीं हुई। मुसलमान जो है मुजाहिदीन कामयाब नहीं हुए, और रात के वक्त में मुसलमान मुजाहिदीन के उन ठिकानों पर जो छापामार जंग जारी थी वो किसी ने रात फाश कर दिया, और मुसलमानों की मुजाहिदीन की एक बड़ी तादाद जो है वो रात में सोते हुए मार दी गई। लिहाजा ये जंग भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। मौलाना विलायत अली साहब, अब अंग्रेजों ने जो है वो मतलब और ज्यादा देखा कि यहाँ पर मरकज बनता ही जा रहा है और मरकज टूट नहीं रहा है। आपको हैरत होगी 1947 तक ये मरकज कायम रहा। हालात खराब से खराबतर होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान हार करके, मुजाहिदीन हार करके अपने घर चले गए हों, मरकज चलता रहा। तो मौलाना विलायत अली साहब जो सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है खास शागिर्दों में से थे, इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया वहां पे अंग्रेजों ने, और अरेस्ट करने के बाद इनको जो है ला करके पटना में नजरबंद कर दिया, क्योंकि ये सादिक़पुर उलमा की जो बहुत बड़ी तादाद थी, पटना के करीब इलाका था, तो ये वहीं के रहने वाले थे। लिहाजा इनको पटना में ला करके नजरबंद कर दिया गया, और 2 साल की पाबंदी लगा दी गई कि आप पटना शहर छोड़ नहीं सकते हैं। मौलाना अब यहाँ पे जो मरकज था पंजाब के इलाके में, तो सैयद अकबर शाह साहब ने जो है कमान संभाल ली। यहाँ पर संभालने के बाद मौलाना की जब 2 साल की मुद्दत पूरी हुई पटना की, यानी जो उनको बैन लगाया गया था कि आप पटना शहर नहीं छोड़ सकते हैं, तो मौलाना ने 2 साल के बाद जब वो टाइम खत्म हुआ तो ये फिर आस्थाना चले गए, और वहां जाकर के अकबर शाह साहब ने फिर इनको कमान दे दी। तो गोया कि विलायत अली साहब ने दोबारा मरकज को संभाला। संभालने के बाद 1852 में इनका जो है इंतकाल हो गया। बतई छापा मार लड़ाई होती रही, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई जैसे कि मतलब मारका हो, आमने सामने फेस टू फेस हो। जब इनका इंतकाल हो गया तो विलायत अली के जो भाई हैं इनायत अली साहब, उन्होंने आकर के यहाँ की बागडोर संभाली, और पटना में एक दूसरा मरकज कायम कर दिया गया। वो उसी वक्त कायम कर दिया गया जबकि पंजाब के इलाके में मरकज कायम किया गया। इंशाल्लाह हम उसके बारे में अभी अलग। पूरे हिंदुस्तान में तो वह यही 2 मरकज थे जहाँ पे मुजाहिदीन जो है वो कार्रवाई कर रहे थे, और वहां से जो कुछ भी हो सकता था अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक पटना का इलाका था, और एक जो है ये आस्थाना या पंजाब का जो इलाका है, सरहद का इलाका है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका पंजाब में कहिए आप सरहद कहिए, सरहद का इलाका है। तो मौलाना इनायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने जब बागडोर संभाली तो 1852 के बाद इस इलाके की सूरत हाल बहुत खराब हो गई। बहरहाल मौलाना ने उसी अपनी पॉलिसी को सामने मद्देनजर रखा, और मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो एक शख्स था जिसका नाम था जहांदार खान वाली, ये जहांदार खान वाली भी अंग्रेजों से मिल गया। अब मुसलमानों की टक्कर जो अंग्रेज से और सिख से होनी थी, सिख से ये मिल गया, और मिल करके इन्होंने मुजाहिदीन को जो है जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बहरहाल 1852 से लेकर के 1858 तक तकरीबन मुसलमानों ने 16-17 फौजी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की, फेस टू फेस नहीं, कार्रवाइयां होती रही, और इसमें काफी इनका भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ। बहरहाल अंग्रेज इस बात से परेशान थे कि सारी ताकत लगा देने के बावजूद भी मरकज अपनी जगह पर क्या है वो बरकरार है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गारों में छुपे हुए थे, पहाड़ों में छुपे हुए थे। आप अंदाजा करें कि उस वक्त जबकि कोई मोबाइल सिस्टम नहीं था, लेकिन सारे मुजाहिदीन आपस में लिंक थे, और सबको ये आइडिया था कि कौन हमारा बंदा किस जगह पर रहता है, और एक बड़ी तादाद खाने के टाइम पर इकट्ठा भी हो जाती थी, और अपने तौर पर सब जगह अपनी अपनी कार्रवाई में मसरूफ भी रहते थे। बहरहाल यहाँ पे जो है वो 1857 का जब वाक़या हुआ, ये मेरठ से जहाँ से बात शुरू हुई, बात तो और अलग से शुरू हुई। 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, तो इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी इस आस्थाना के मरकज पर, और इसमें जब इन्होंने कार्रवाई की तो मुजाहिदीन की कमर टूट गई,
اور اس में बहुत बड़ी तादाद मुजाहिदीन की मारी गई। हालांकि तकरीबन ये 80,000 से 90,000 लोग, ये छोटी मोटी तादाद नहीं थी, एक बड़ी तादाद थी। बाद लोग कहते हैं ये अंग्रेजों का हवाला है और ज्यादा तादाद नहीं थी। बहरहाल मुसलमानों ने जो तादाद लिखी है वो 12 से 1500 लिखी है, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी तादाद जो है 53,000 से लेकर के 80,000 तक लिखी है। तो कुछ होगी ज्यादा, कुछ इन्होंने कुछ कम दिखलाया होगा, उन्होंने कुछ ज्यादा दिखलाया होगा। बहरहाल ये हुआ कि मुसलमानों का जो मामला मुजाहिदीन का यहाँ पर था, अस्थाना जो सरहद का इलाका था, इस 1857 जब लाल किले पर झंडा गड़ गया और गड़ने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरा सबसे बड़ा इनके लिए खतरा था वो अस्थाना का इलाका था, और उसके बाद जो है मुसलमान मुजाहिदीन जो है वो काफी कमजोर हो गए। अब मामला था कि जब इतनी कमजोरी हो जाती है तो वहां भी बागडोर कौन संभाले, क्योंकि हर आदमी तो अपनी जान को भी तो है। लेकिन आपको हैरत होगी कि एक दो नहीं, कई लोग मुजाहिदीन तैयार हैं कि हम इस मरकज को बरकरार रखेंगे और यहाँ पे जो गोरीला वार हो रही है ये वह वार जारी रखी जाएगी। बहरहाल 1858 के बाद मौलाना नूरुल्लाह साहब ने इस मरकज को जो है वो संभाल लिया, और संभालने के बाद उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद मकसूद अली साहब ने संभाला। ये सब आलिम है, ये सारे के सारे आलिम हैं। उसके बाद इसी दरमियान में अब्दुल्ला जो मौलाना विलायत अली साहब, इसके पहले बताया ना, इनके लड़के जवान हो गए, तो अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली से हिजरत करके और आकर के अपने वालिद साहब के उस मरकज को दोबारा संभालने की कोशिश की। और अब्दुल्ला साहब की जवान थे, ये दो आलिम थे, ये सब तकरीबन 55 के ऊपर लोग थे जो कमांडिंग कर रहे थे। अब्दुल्ला साहब नौजवान थे और जब इन्होंने 1858 के बाद आकर के मरकज को संभाला तो 1902 तक लगातार ये कमांडर रहे, लगातार तकरीबन 40-42 साल तक इन्होंने क्या की, कमांडिंग की। और 1902 में जाकर के इनका इंतकाल हुआ और इन्होंने 1863 में एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की, जिसमें अंग्रेज जो है जो 1857 में अपनी जीत का झंडा गाड़ चुका था, वो 1863 में इस जंग में उसको बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई और तकरीबन अंग्रेज फौजी जो मुसल्ला थे उनके तकरीबन 1000 लोगों को इन्होंने जो है वो मार गिराया। और मार गिराने के बाद 1863 के बाद फिर इस इलाके से अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई कि इन पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना है, इनको इसी हालत में रहने दो, इतना रखो कि ये हमारे ऊपर किसी तरह क्या है वो चढ़ाई न कर सके, लेकिन इनके ऊपर हम जो हमला करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है, इनका नुकसान कम हो रहा है। तो 1863 वाले में इन लोगों का जो मोराल था अंग्रेजों का, हालांकि दिल्ली पर झंडा गड़ चुका था, उसके बावजूद भी मोराल इतना डाउन हुआ कि इन्होंने इस इलाके में अपनी कार्रवाई को क्या कर दिया, थोड़ा से हल्का कर दिया। बहरहाल मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद तकरीबन उस वक्त जो हमारे लोग लिखते हैं वो 1200 से 1400 थी, अंग्रेज कहता है कि नहीं ये 53,000 से 80,000 तक थी। ऐसा भी हो सकता है कि परवरदिगार आलम की जानिब से ये हो कि इनकी तादाद उनको ज्यादा नजर आ रही हो और जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन हुआ हो, और डाउन होने के बाद मुसलमानों के अल्लाह ने मदद की हो। यहां तक बात जो पहुंची, इसमें एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर इतनी मुनज़्ज़म तंजीम और इतने सालेह और नेक लोग ये कामयाब क्यों नहीं हुए, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, दो चीजें होती हैं, ये जो बात कहने जा रहा हूं आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, तारीख की बात नहीं है। दो चीजें होती हैं, ये जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जिहाद के नाम पर उठती है तो इसमें एक जगह यू टर्न आता है, यानी ट्रैक चेंज करने का टाइम होता है। अगर उस ट्रैक चेंज करने के टाइम में कमांडर ने गलती कर दी तो पूरी तहरीर खत्म हो जाती है। एक वजह ये बुनियादी होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि अगर अपने लोग अंदर से साजिश करने लगते हैं तो फिर क्या होता है नतीजा खत्म हो जाता है। ट्रैक चेंज करने में जो अंबिया कामयाब होते हैं, अंबिया को परवरदिगार आलम वक्त बता देता है कि ये आपका टाइम है ट्रैक चेंज करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 23 साल जिंदगी में इतना जबरदस्त इनकलाब आ जाना, जितने इनके पास अफराद हैं उनसे कम अफराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यू टर्न है जिंदगी का, वो अल्लाह के रसूल से जब हिजरत की इजाजत दी तो पहले आपने अल्लाह ने कहा कि आप अब मदीना की तरफ, पहले हबशा की तरफ फिर मदीना की तरफ हिजरत का टाइम दिया। बार बार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते थे कि हम लोग कब जाएंगे, सब लोग मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे हैं, आप हमको आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ने
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने जो है ना वो बताया है कि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि किस वक्त आपको जाना है। ये ट्रैक चेंज करने का टाइम होता है। अगर ट्रैक चेंज का, क्योंकि वो अंबिया हैं, उनको गाइड अल्लाह की जानिब से होता है, तो अल्लाह की जानिब से गाइड होने की वजह से क्या होता है कि जब वो ट्रैक चेंज करते हैं तो उस वक्त परवरदिगार आलम, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, मालिक कुल है, वो जानता है कि इस वक्त इसका मुनासिब टाइम है। तो एक बुनियादी वजह होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जिहाद वाली ऑर्गेनाइजेशन की, कि किस वक्त यू टर्न का टाइम है। अगर कमांडर ने या अमीर ने गलती कर दी तो सबसे बड़ा खतरा नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह होती है जो आपको बताया मैंने कि अगर आपस में जो है अंदर से लोग साजिश करने लगे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही हुआ, साजिश हुई, लेकिन अल्लाह ने की मशीयत तय थी कि हुजूर को झंडा गाड़ देना है। वरना आपको मालूम है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के लिए निकले और 1000 फौज आपके साथी, जिसमें से 300 लोग क्या हो गए, पलट गए, बीच में मुनाफिकत कर दी, उन्होंने कहा कि हमारा लड़ने का टाइम नहीं है। ये भी अंदर ही के लोग थे जो अपने आप को पक्के मुसलमान कहते थे, और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की क़यादत में इन लोगों ने अपने आप को वापस कर लिया। अगर कोई दूसरा नबी के वसल्लम की जगह पर होता तो पूरे जानते थे कि मोरल डाउन हो जाता और मामला क्या होता, गड़बड़ हो जाता। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी जो मुसलमान आर्मी थी उस वक्त, जो मुजाहिदीन थे, उनको ये हुआ कि परवरदिगार आलम की इसी में मसलहत है कि इनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए। इस किस्म क्या है, जब ईमान बहुत तगड़ा होता है तो आदमी के जुमले इस किस्म के बोलते हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल चाहता ही नहीं कि ये उहद की फजीलत में शामिल है, लिहाजा सारे के सारे कचरे को बाहर कर दिया उसने। तो ये साजिशें होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो इनके साथ जो साजिश हुई इस मुजाहिदीन के साथ, वो दूसरी बड़ी साजिश हुई, वो ये थी कि जो भी आपको मालूम है कि अगर आप कलकत्ता से लेकर के कश्मीर तक और इधर कन्याकुमारी तक सारे इलाके में अगर आप देखें तो 90% जो हुक्मरान थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो थे, उसमें से 90% मुस्लिम रहनुमा थे। मुस्लिम या तो नवाब थे, या क्या कहते हैं तकियादार थे, या क्या कहते हैं गवर्नर थे, या बड़े बड़े उमरा थे। इसमें से जब यहां से सैलाब चला कलकत्ता से 1600 के बाद, तो एक दो करके जो अंग्रेजों का सपोर्ट करके और अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में रहे, इसमें क्या हुआ, एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो क़यादत पे था, जो कायद था या जो हुक्मरान था, वो अंग्रेजों के साथ हो गया। तो अब मुसलमानों को अंग्रेजों से जंग करने के बजाय एक बड़ी एनर्जी किससे जंग करनी पड़ी, इन लोगों से जंग करनी पड़ी। ये बुनियादी वजह थी कि इतनी मुनज़्ज़म तमीज़ कर मैंने आपको ये बात कही थी गालिबन कि सहाबा के बाद कभी इतने सालेह लोग जो है ना, सैयद अहमद रायबरेली रहमतुल्लाह अलैह के झंडे के नीचे जितने लोग इकट्ठा हुए, कभी सहाबा के बाद इतने सालेह लोगों की मुजाहिदीन की जमात कभी नहीं बनी। लेकिन ये अंदर के जो लोग थे, जो मुस्लिम हुक्मरान थे, भाई टीपू सुल्तान की शहादत हो उसमें भी मुसलमान का ही हाथ है, बात आपके सामने आएगी। तो ये जो मुस्लिम हुक्मरान थे, इनकी वजह से मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से इतनी सालेह और साले तंजीम होने के बावजूद भी जो है वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी इनका दिल बुर्दा था कि जो 1947 तक इन्होंने मरकज को बराबर कायम रखा। ये भी खुद एक बहुत बड़ा मौजूदा है कि इतना सारा इख्तिलाफ, उधर सिखों का इख्तिलाफ, उधर क्या कहते हैं मुस्लिम हुक्मरानों का इख्तिलाफ, उधर इलाके में ये बात फैला देना कि साहब ये वहाबी हैं, ये सारे के बावजूद भी अपने मरकज को बरकरार रखना, ये भी बहुत बड़ा मौजूदा है। बहरहाल इसमें जो आपको मैंने कल बात बताई थी कि ये वहाबी का जो मामला शुरू किया गया, ये सैयद साहब की भी जो शहादत थी वो भी इसी वजह से हुई। और ये दूसरी जो आपको बताया कि दूसरी बड़ी जंग हुई, ये भी जो है ना उसी गुलाब सिंह के, उसमें भी यही मामला हुआ। जो किताबें लिखी गई सबसे पहले वहाबीइज्म पे, आप भाई वहाबी ताल्लुक है इस्लाम से, अगर आप देखें, आप उसको मुसलमान कहें ना कहें, मामला मुसलमान का है। एक भी मुस्लिम राइटर नहीं है जिसने वहाबी पर किताब लिखी है शुरू में। पहली किताब से मुराद ये तो मैं नहीं कह सकता हूं नंबर वाइज, बहरहाल जो अहम किताबें लिखी गई वो पहली किताब ये है कि बदू एंड वहाबीज, लिखने वाला जो है वो बर्क हर्ट्स है। ये पहला अंग्रेजी में किताब लिखा और इसने लिख करके सबसे पहले इस बात को लोगों के सामने किताब, ये मुसलमान नहीं है, ये वहाबी है। वरना ये जो बाद में आज लोग वहाबी बोलने लगे, इनको पता भी नहीं था लफ्ज़ वहाबी कहाँ से आया है।
अच्छा, दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ द वहाबीज लिखी गई जॉन ब्रीफ की तरफ से, ये भी अंग्रेज राइटर है। तीसरी किताब लिखी गई द पॉलिटिकल मिशन टू नज्द, ये अब्दुल वहाब नज्द के रहने वाले थे, लिहाजा ये किताब लिखी गई। इसका भी जो राइटर है ना सर लुइस टैलस है। उसके बाद मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ये किताब भी लिखी गई W.W. हंटर की तरफ से, ये बहुत खतरनाक किस्म का आदमी W.W. ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। अच्छा, उसके बाद किताब लिखी गई सेंट्रल एंड ईस्टर्न अरबिया, इसके नाम पे किताब लिखी। इसका लिखने वाला भी मुसन्निफ राइटर है, P.W. कुछ करके इसका नाम है। इमाम एंड सैयद ऑफ ओमान, ये भी एक अंग्रेजी राइटर के जरिए लिखी गई ऑर्बिट जर्स की तरफ से। और उसके बाद पिलग्रिमेज टू द नज्द, ये किताब लिखी गई एक लेडी ने लिखी, प्लेंसन, ये लेडी थी, इसने लिखी। और एक किताब लिखी गई फ्यूचर ऑफ इस्लाम, इसका भी मुसन्निफ जो है वो प्लेंट्स है। ये सारे के सारे ब्रिटिश राइटर हैं जिन्होंने किताबें लिखी और लिख करके इस बात की तरफ जो है मुसलमानों की कि मुसलमानों, क्योंकि यही वो वक्त था जब वो फार्मूला आया डिवाइड एंड रूल का। ये जब किताब लिखी गई और लिख करके इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि सारी किताबें गवर्नमेंट की तरफ से लिखी गई हैं, बेशुमार किताबें तकसीम की गई, हर जबान में इनका तर्जुमा किया गया कि किस तरह, क्योंकि हमारा टक्कर भारत में अगर कोई ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है, ज्यादा मुसलमानों को 2 हिस्से में तकसीम कर दो। इसका नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान 2 हिस्से में तकसीम हो गए। ये जो आप बरेलवियत और देवबंदियत की बात देखते हैं वो इन्हीं किताबों के लिखने के बाद मामला बना है। यही वजह है कि कोई भी बड़ा बरेलवी आलिम फ्रीडम फाइटर नहीं है, चाहे अहमद रजा खान साहब हो या उनके और फॉलोअर्स हों, एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो फ्रीडम फाइटर हो, क्योंकि अहमद रजा खान साहब ने अपने जमाने में ये फतवा दिया कि अंग्रेजों से इस वक्त जिहाद करना कुफ्र है। ये किताबें आने के बाद ये नतायज बरामद हुए, मुस्लिम जो थे वो डिवाइड हो गए। जो इसकी प्लानिंग थी ना कि मुसलमानों को बगैर डिवाइड किए हुए मुसलमानों पर और इस भारत पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इन किताबों ने अपना पूरा लोड अदा किया और नतीजा यह निकला। हालांकि अहमद रजा खान साहब के जो उसूल हैं कुफ्र के, बड़े प्यारे उसूल हैं। उनका कहना है कि 99.9% अगर किसी के अंदर कुफ्र की सारी क्वालिटी पाई जाए, कितना कह रहा हूं, 99.9% बंदे के अंदर सारी क्वालिटी कुफ्र की है, लेकिन 0.1% अगर उसके अंदर महसूस होता है ये इस्लाम है, तो इस्लाम का फतवा दिया जाएगा, काफिर नहीं कहा जाएगा। ये है पॉलिसी। पॉलिसी बनाना अलग है, पॉलिसी पर अमल करना, पॉलिसी पर अमल नहीं है। सारी मिसाल के तौर पर मैं उलमाए देवबंद को जो इन्होंने काफिर कहा, उलमाए देवबंद ने उसके बाद बाकायदा किताब लिखी कि आप मेरी जिन जिन किताबों पर आप हमको कुफ्र का फतवा दे रहे हैं, मैंने उस इबारत का ये माना समझा है न लिखा है। भाई एक आदमी मौजूद है और वो अपना क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस इबारत का मेरा मतलब ये नहीं है, उसके बावजूद आप कहने मैं वही मतलब निकालूंगा। तो ऐसी शक्ल में इन किताबों ने अपने असरात दिखलाए और अंग्रेजों ने बाकायदा डिवाइड एंड रोल के जरिए ही फिर हिंदुस्तान पर कब्जा किया। एक हिस्टोरियन है सीताराम का कहना है कि आजादी में हिंदू लोग तो मुसलमानों के पीछे शामिल हो गए, वरना असल जो मामला था ना वो अंग्रेजों का किससे चल रहा था, वो मुसलमानों से ही चल रहा था। ये 1857 से कुछ पहले जब उन्होंने, अभी हम जो बात आगे करेंगे, जब उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब के ऊपर अटैक शुरू किया, तब यहाँ की जो दूसरी कम्युनिटी थी मुसलमानों के साथ मिल गई कि नहीं, आपका जो नजरिया है कि ये हमको दीन धर्म का भी बर्बाद करना चाहते हैं और मुल्क पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तब मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद यहाँ पर शुरू हुआ और फिर मिल करके जो है वो फ्रीडम यानी आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो ये एक मरकज के हालात थे और इसके नाकाम होने के जाहिरी जो असबाब थे वो मैंने आपके सामने रखे। दूसरा मरकज जो हमारे सामने चल रहा था, आपको बताया था कि इसके साथ पैरेलल मरकज जो कायम था वो पटना का मरकज था। उलमाए सादिकपुर करीब का इलाका है वहां का, इन्होंने ये मरकज बनाया था और वही राबिर अली रहमतुल्लाह अलैह के जो दोनों शागिर्द थे, विलायत अली और इनायत अली, इनके तीसरे भाई थे जिनका नाम था मौलाना फरहत हुसैन। तो ये लोग तो इन सब इलाकों में थे। मौलाना फरहत हुसैन को इस इलाके में जो है वो इनका इंचार्ज बनाया गया था इस इलाके का,
और यहाँ पर एक बहुत एक्टिव आदमी थे जिनका नाम था निसार अहमद उर्फ टीटू। निसार अहमद उर्फ टीटू ने 1831 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस मरकज से कार्रवाई शुरू की, और इनके पास इनकी मेहनत की वजह से इस मरकज से 80,000 लोग मुजाहिदीन जुड़े हुए थे। जुड़े मतलब ये नहीं कि वहां मौजूद रहते थे, लेकिन इनकी कॉल पर किसी वक्त भी आने के लिए वो तैयार रहते थे कि आप जब भी हमको बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार है। तो 1821 में इन्होंने कार्रवाई की थी अंग्रेजों के खिलाफ और काफी कामयाब रही। 1840 तक 1821 से 1840 तक इसका जो मरकज का नज्म था वो चलता तो रहा मौलाना फरहत अली के अंडर में, लेकिन इसमें जो लोग जुड़ते गए उसमें निसार अली टीटू उर्फ टीटू साहब का बहुत बड़ा हाथ था, लिहाजा 80,000 आदमी तकरीबन इससे जुड़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी भी इसी मरकज में सपोर्ट करते थे। तो निसार अहमद साहब और मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह जो रामपुर के रहने वाले थे, इन लोगों ने फरहत हुसैन साहब को जो है वो सपोर्ट कर रखा था। ये तो विलायत अली, इनायत अली और फरहत हुसैन ये तीनों भाई हैं, और ये तीनों के तीनों जो है रूहानी शागिर्द हैं किसके? सैयद अहमद रायबरेली रहमतुल्लाह अलैह के। कुछ तो डायरेक्ट शागिर्द हैं और कुछ उनसे बैठ हैं और उनके शागिर्द हैं। बहरहाल इन्होंने अपनी कार्रवाई यहाँ से जारी रखी। इसका फायदा ये होता था कि ये पटना, हैदराबाद, चेन्नई और बम्बई यहाँ से सारे लोग भेजे जाते थे। कहाँ? अफसाना जो सरहदी इलाका था। मौलाना फरहत अली साहब जो इसके इंचार्ज थे, 1858 में इनका इंतकाल हो गया, यानी गोया मरकज में रहते थे, इंतकाल हो गया। इसके बाद मौलाना याह्या अली साहब को इसका पटना का इंचार्ज बनाया गया। अब ये 1858 की बात है तो 57 का वाकया पेश आ चुका था। 1858 में जब इनको बनाया गया तो चूंकि अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा चुके थे, इन्होंने इस मरकज पर जो है वो छेड़ना चाहा, और नतीजा ये निकला कि इन्होंने मौलाना याह्या साहब को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद काला पानी भेज दिया। काला पानी समझते हैं? उस अंडमान निकोबार का जो इलाका है, ये अंडमान निकोबार पहले पूरा सूबा, अब तो सूबा बन गया है, ये जजीरा था, और अंग्रेज उम्र कैद की सजा जिनको दी जाती थी उनको जाकर के इसी जजीरे में छोड़ दिया जाता था। तो मौलाना मोहम्मद याह्या साहब को वहां पर छोड़ा गया। 1864 तक इन्होंने यहाँ पर मरकज को संभाला, और उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद इनको काला पानी छोड़ा गया। इंशाल्लाह हम चाह रहे थे कि 1857 की गदर क्यों हुई इस पर हम बात करें आपसे, लेकिन ये मरकज भी तकरीबन कायम रहा, और 1947 तक इस मरकज से लोगों को जो है वो रसद मिलती रही। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे, जिंदगी रहेगी तो ये जो गद्दारी जिसको अंग्रेज ने कहा, और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान में 1857 में हुई, वो शुरू कहाँ से हुई, और आखिर क्या ऐसी चीज थी कि हिंदू मुस्लिम मिल गए, और मिलने के बाद भारत की आजादी के लिए उन्होंने एक साथ कदम उठाया। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो कल हम बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहलाए और आप लोगों को जो है वो सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।